بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ولیج ٹاکس۔ اول حمد خدا دا ورد کیجئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں ہیں، تو جناب ہم ہیں اس وقت موگلی گاؤں میں، اور مشن جو ہے لوگ اسے امپاسبل کہتے ہیں، لیکن آج یہ جوان انشاءاللہ پاسبل کرنے والے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں جناب ٹلہ جوگیاں پہاڑ پر، اور ٹلہ جوگیاں جو ہے یہ مختلف چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹلہ جوگیاں پہاڑ یا ٹلہ بال ناتھ پر جانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، جن میں 3-4 راستے بہت عام ہیں۔ یہ جس راستے سے ہم اب ٹلہ کی جانب رواں دواں ہیں یہ ہے ہون ہم والا گاؤں کی طرف سے، اور یہ راستے میں موگلی گاؤں سے ہوتے ہوئے ہم ٹلہ کی طرف جائیں گے۔ سکھ کٹ ملن درد ہزار ملن۔ جہلم چھاؤنی چوک کی طرف سے یہاں آنے کے لیے تفصیل کچھ یوں ہے کہ چھاؤنی چوک سے ہموالا گاؤں تک یا موگلی تک یہ فاصلہ تقریباً 45 سے 50 کلومیٹر کا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دشوار گزار راستے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہر دم ہر منٹ میں رنگ بدلتا آسمان، بے شمار دشواریاں۔ تو انہی راستوں سے سفر کرتے ہوئے آپ کو ٹلہ جوگیاں کی طرف جانا ہوگا، اور یہ تمام سفر آپ نے پیدل کرنا ہے۔ موٹر سائیکل یا جیپ اور گاڑی وغیرہ یہاں جا سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ جیسا کہ آپ آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے یہ آپ کے لیے اگر کوئی گاڑی وغیرہ ہو تو بے شمار دشواری بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اور موگلی گاؤں یا ان علاقوں میں لوگ گزر بسر کے لیے کھیتی باڑی یا جانور پالنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ ہم دوست اپنے سفر کی جانب رواں دواں ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے اور بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا جو کہ ٹلہ جوگیاں جانے کا ارادہ تو کرتے ہیں، لیکن ان میں سے 10% مضبوط ارادے کی وجہ سے جا پاتے ہیں، جیسا کہ آپ ہمارے دوستوں کو اور یہ راستے میں جو دوست ملے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور 90% ایسا ارادہ کر کے اور ان دشوار گزاریوں کو دیکھتے ہوئے یہ ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ایسے دوستوں کا ساتھ میسر ہو جو آپ کی ایک آواز پر لبیک کہہ دے، اور ایسے راستے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کرے، تو پھر ایسے جو سفر ہیں وہ خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ تو اب آئیے تاریخ جہلم، تاریخ ٹلہ جوگیاں، جہلم کے مشہور مصنف مورخ انجم سلطان شہباز صاحب کی کتاب تاریخ جہلم سے آپ کے لیے پیشی خدمت ہے۔ انجم سلطان شہباز صاحب لکھتے ہیں کہ جب آپ دینا کی طرف سے ٹلہ جوگیاں کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو راستے میں بھیٹ گاؤں آتا ہے۔ بھیٹ گاؤں سے ٹلہ کی جانب پیدل سفر تقریباً 2 گھنٹے ہے، اور یہاں پہ سیڑھیوں کے آثار بھی نظر آتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ کدی سانو اندروں پرولتے سی۔ ٹلہ جوگیاں کے حوالے سے رگ وید کی پہلی کتاب کے 41ویں بھجن میں بھی لکھا گیا ہے کہ شیو نے گورکھ ناتھ کو ٹلہ کی گدی عطا کی۔ ناتھ کے لفظی معنی زمانے کے امام کے ہیں، اور یہ سرزمین چونکہ جوگیوں کی سرزمین بھی رہی ہے، تو جوگی کا مطلب ہے تپسیا یا ریاضت کرنے والا۔ ہندوؤں میں ناتھ کو وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں میں غوث یا قطب کو ہے۔ گورکھ ناتھ کے یوں تو سینکڑوں چیلے تھے، مگر 12 ایسے تھے جن کو ناتھ کا درجہ ملا۔ ان ناتھوں نے 12 سلسلے قائم کیے، جن کے باعث جوگیوں کے 12 فرقے بنے۔ جس طرح مسلمانوں میں تصوف کے 4 سلسلے ہیں، اسی طرح ہندوؤں میں دریائی، کیکی، دھری،
मच्छंदरी, गोरखी और आवधरी वगैरह हैं। टिल्ला जोगियाँ सूरज के पुजारियों, हिंदुओं, बुद्धों, जैन, सिखों और मुसलमानों सब के लिए मुतबर्रक जगह समझी जाती है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने भी टिल्ला जोगियाँ पर एक सफ़रनामा लिखा, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब लिखते हैं, क्या सिकंदर, जहांगीर और रंजीत सिंह सब अपनी फतूहात के लिए बालनाथ के जोगियों की दुआओं के तालिब हुए। मज़हब और किसी मखसूस अक़ीदे से मावरा अकबर आज़म ने जब यहाँ कदम रखा तो उसने जोगियों से पूछा कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, महाराज, हम जोगी बेशक दुनिया त्याग चुके हैं, लेकिन ये बदन त्यागा नहीं जा सकता। इसकी कुछ मांगे हैं, इसकी कुछ ज़रूरतें हैं। हमने गायें पाल रखी हैं, टिल्ले पर अपने गुजारे जोगी सब्जियां काश्त करके करते हैं, पर हमारे पानी का बंदोबस्त नहीं। हम बहुत कठिनाइयों मतलब मुश्किलों में से नीचे उतरकर घाघरों में, तालाबों में बमुश्किल पीने का पानी तलाश करते हैं, वहाँ से लाते हैं। हमें एक तालाब की मांग है, हमें एक तालाब मुहैया किया जाए। चनाचे अकबर ने जोगियों की ये ख्वाहिश पूरी कर दी। यहाँ एक शानदार और मुगलिया तर्ज का तालाब तमीर करवाया, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। टिल्ले की चट्टानों की दरारों में चश्मे पोशीदा थे, उनका रुख मोड़ा गया। एक दो पहाड़ी नदियों की गुजरगाहों को तब्दील करके उन्हें तालाब की जानिब ले आया। बारिश के मौसम में तालाब का पानी किनारों से बाहर आ जाता। जोगी हजरात ने अकबर को इतनी दुआएं दी कि वो अकबर आज़म हो गया। कह दिए इश्क दे गुंजल खोल ते सही, तैनू मिट्टी विच ना रोल देवे। दो प्यार दे बोल बोलते सही। टिल्ला जोगियों के मकाम पर सिकंदर आज़म भी आया। जब राजा पोरस सिकंदर से सफ़ आरा हुआ तो एक शाही हाथी भागकर इस पहाड़ी पर चढ़ गया, जिससे ये मतलब लिया गया कि पोरस को इस जंग में शिकस्त होगी। बाद में ये सिकंदर को वाक़या सुनाया गया तो उसे भी इश्तियाक हुआ कि वो यहाँ आए और जोगियों से मिले। टिल्ला जोगियाँ पहाड़ पर पहुँचने के बाद ये पहाड़ से दूसरी तरफ का नज़ारा है, जो कि हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। इस पहाड़ को टिल्ला बालनाथ, टिल्ला बाबा नानक, टिल्ला जोगियाँ और टिल्ला रांझा भी कहा जाता है। ये ज़िला जेहलम की सबसे ऊंची चोटी या पहाड़ी है। टिल्ला की ऊंचाई तकरीबन 3242 फीट है। अगर आप इस टिल्ला की जानिब सफ़र करने का इरादा कर चुके हैं या इरादा कर रहे हैं तो इस पहाड़ पर जाने के लिए कुछ तैयारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको रोज़ाना पैदल चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ चूँकि लगातार इस दुश्वार गुज़ार पहाड़ी से गुज़रने का फ़ासला तकरीबन 3 से 4 घंटे बन सकता है। इसके साथ साथ इस टिल्ला पर पीने के पानी और किसी भी किस्म के पानी का कोई भी मुनासिब ज़रिया मौजूद नहीं है। लिहाजा अपने पीने के लिए वहाँ अगर आपने कुछ खाने पीने की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको पानी की तमाम ज़रूरत के लिए पानी नीचे से ही अपने साथ लाना पड़ेगा और इसकी तैयारी ज़रूर करके आएँ। रेस्ट हाउस का मेन हॉल जहाँ ये दोस्त विराजमान है और ये हमारे वो साहिब हैं जिन्होंने खाने का सारा बंदोबस्त माशाल्लाह संभाला हुआ है। और इसके साथ ही एक बहुत वसी व अरीज़ बेडरूम, आप तसव्वुर नहीं करेंगे कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपका हाल बिल्कुल यही हो जाता है जैसा कि हमारे इन दोस्त का है। इस बेडरूम के साथ बहुत ही खूबसूरत एक टाइल्स लगा खूबसूरत वॉशरूम मौजूद है। लेकिन ये सुन के आपको हैरानी होगी, दोबारा हैरानी होगी कि पानी का यहाँ किसी भी किस्म का कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं है। ये रेस्ट हाउस हर तरफ से सेफ्टी के हवाले से ज़बरदस्त बनाया गया है। यूँ ही आप पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं तो एक वसी व अरीज़ कम्प्लेक्स नज़र आता है, जिसमें मंदिर भी हैं, समाधियाँ भी हैं और जोगियों की गारें भी। एक बड़ा तालाब
जो कि आप देख चुके। कई छोटे तालाब, एक वसी मैदान भी है जहाँ सालाना मेला लगता था। बाबा गुरु नानक ने भी यहाँ चिल्ला कशी की थी। रांझा हीर से मिलने के लिए जोगियों का रूप धारने यहीं आया था। महकमा जंगलात का रेस्ट हाउस से नीचे एक पत्थर का चबूतरा आज भी रांझे से मंसूब है, जिसका जिक्र वारिस शाह ने भी किया है। तारीख़ जहलम आज अंजुम सुल्तान शहबाज साहिब 257 नंबर सफ़े पर दर्ज करते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने रोहतास में क़याम के दौरान बालनाथ का मंदिर मुनहदिम करा दिया। बेशतर पुराने मंदिर तबाह हो गए और बाद में राजा मान के अहद में इनकी तामीर नौ की गई। इन जोगियों ने देसी तरीका इलाज आयुर्वेदिक मुतारिफ़ करवाया। कुश्ता साजी और जड़ी बूटियों से इलाज का फ़न, इल्म नुजूम के अलावा योगा की इजाद और कवायद व ज़वाबित इन्हीं जोगियों की मरहून मिन्नत है। सुख कट मिलन दर्द हजार मिलन, कदी इश्क नू तकड़ी तोलत से तेरी हसदी अख वे पिज जावे। ये सिखों और हिंदुओं की कदीम तरीन इबादतगाहें हैं। गुरु नानक साहब ने यहाँ तमाम जोगियों को एक रब का पैगाम पहुँचाया, इंसानियत से रोशनास करवाया। सुनने में आता है कि 1947 में हिंदुस्तान की जब तकसीम हुई तो कमो बेश 1 लाख से ज़ायद जोगी इस टिल्ले पर मौजूद थे, जिनको तकसीम की खबर बहुत देर से पहुँची और फिर वो काफ़ी महीनों के बाद यहाँ से इंडिया गए और वहाँ आबाद हो गए। लेकिन तमाम तारीख़ी मंदिर यहीं रहे और तब से अब तक अपनी उदासी की कहानी यूं ही हम जैसे जाने वालों को सुना रहे हैं। बड़ा इश्क इश्क तू कर कह दिए इश्क दे गुंजल खोलते सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे। दो प्यार दे बोल बोलते सही, सुख कट मिलन दर्द हजार मिलन, कदी इश्क नू तकड़ी तोलते से तेरी हसदी अख वे पिज जावे। हो कहदी सानू अंदरों फरोलते। इस जगह से आप चारों तरफ का इलाका तसल्ली से देख सकते हैं। यहाँ मौजूद मुख्तलिफ़ इबादतगाहें, मंदिर, गुरु स्थान और संगतों के बैठने व इबादत करने की जगहें। इस तवील सफ़र की थकन के बावजूद हमारे इस भाई ने किसी कदर भी हिम्मत न हारी। जाते ही लकड़ियाँ जमा की, आग जलाई, ये तमाम बंदोबस्त करने में मसरूफ़ रहे। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जी आतिफ भाई, आज हम टिल्ला जोगियों के विजिट पे आए थे, तो कैसा लगा इधर आके? सर बहुत अच्छा लगा है, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। मतलब आप थक गए हैं सफर से? नहीं थके नहीं, एंजॉय भी किया है काफी, बहुत मजा। जी मिर्जा साहब, जी सर, कैसा लगा जनाब यहाँ के? सर हमने तो यहाँ पे आके सोचा है ना मरी ना कलाम ना स्वात, जो यहाँ पे नज़ारे हैं वो इलाही नज़ारे हैं। लेकिन और दोस्त वीडियो में देख भी रहे हैं ये तो नज़ारे। हम बहुत हुए हैं, लेकिन हमें आज हमने बहुत सारा एंजॉय किया आपके साथ। ज़बरदस्त जी। जी उमर भाई। हाँ जी, बहुत अच्छा विजिट रहा है हमारा, बड़ा अच्छा व्यू है इधर का और हिस्ट्री बहुत अच्छा। जबरदस्त। जी आदिल साहब, कैसा विजिट रहा है? अच्छा विजिट रहा है, बहुत अच्छा टूर था हमारा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फिर यहाँ पे अपनी टीम लेके आएंगे। जबरदस्त। और उस्ताद जी तो जनाब जैसे पहले बांधा था सामान वैसे ही मसरूफ हैं। जी उस्ताद जी, कैसा रहा विजिट? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। मैं तो सबको कहूँगा जिसने नहीं टिल्ला जोगियां देखा वो आए और एंजॉय करें। जिस टिल्ला नहीं तकिया
और मेरे भाई को कौन वजह दूँ जमे ही नहीं। जाट साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाहु खैरा जनाब। आपने जनाब ये जितनी भी मेहनत इसमें देखी थी ये सारी जाट साहब की थी। सब कुकिंग इन्होंने की, चाय इन्होंने पिलाई, सामान इन्होंने लाया, चीज़ें इन्होंने इकट्ठी की, जो भी कुछ था जिस वजह से हम यहाँ पे पहुंचे और जो इधर का बंदोबस्त था सब इन्होंने किया। जो वीडियोस हमने बनाई वो अकेले बनाई, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते हुए जनाब। लेकिन ये जो चूल्हा है ना चलियानी, ये इससे नहीं निकले जनाब। ये बिल्कुल औरतों की तरह ऐसे ही काम करते रहे हैं और भाभी हमारी जो भी होगी इंशाल्लाह बड़ी खुश रहेगी। आपने टिल्ला जोगियाँ, टिल्ला बालनाथ, टिल्ला बाबा नानक और टिल्ला रांझा से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ चाहता है। मगरिब का वक्त है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं कि हम और किस जगह का विज़िट करें और आपको इन्फॉर्मेशन दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हे राखिया जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मना दे, मैनू कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी हो। जड़ा गया नू मोड़ ले आ।